میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ ہر بیٹی کی رخصتی خوشیوں، دعاؤں اور مسکراہٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، مگر جس دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب پورا ہونے والا تھا، اسی دن میری دنیا میرے قدموں تلے بکھر گئی۔ نکاح کی تمام تیاریاں مکمل تھی، مہمانوں سے سجی ہوئی حویلی روشنیوں میں نہا رہی تھی، اور میں دل میں ہزاروں امیدیں لیے اپنے نئے سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک اجنبی آواز نے پورے ہال کی خاموشی توڑ دی۔ ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ جس لڑکی کی اصل پہچان ہی معلوم نہ ہو، اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری سانس روک دی ہو۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے، مگر اگلے چند لمحوں میں ایک ایسا راز سب کے سامنے کھل گیا جس سے میں خود بھی بے خبر تھی۔ بتایا گیا کہ میں اس خاندان کی حقیقی بیٹی نہیں، بلکہ برسوں پہلے یہ یتیم خانے سے اس گھر لائی گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر منظر دھندلا گیا۔ میں جس شناخت پر ساری زندگی ناز کرتی رہی، وہ ایک لمحے میں مجھ سے چھین لی گئی۔ میرے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا کہ اگر یہ سچ تھا تو مجھ سے اتنے سال کیوں چھپایا گیا؟ اسی دوران بزرگ خاتون نے بھاری آواز میں کہا، کسی کو بلاؤ، اب فیصلہ وہی کرے گا۔ کچھ ہی لمحوں بعد میرا سرپرست، جسے میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی اور محافظ کی طرح مانتی آئی تھی، تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ جسے میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی اور محافظ کی طرح مانتی آئی تھی، تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ میری سوجی ہوئی آنکھیں اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آیا، میرے آنسو صاف کیے اور نرم لہجے میں بولا، میری بہن، آخر تمہیں کس بات نے اس قدر توڑ دیا؟ اس کے لہجے کی شفقت نے میری ضبط کی آخری دیوار بھی گرا دی، اور میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چند لمحے پہلے تک میں دلہن بنی آئینے میں خود کو دیکھ کر شرما رہی تھی۔ ہاتھوں پر گہری مہندی سجی تھی، دل میں انجانے شریک حیات کے لیے بے شمار خواب تھے، اور مجھے یقین تھا کہ آج کے بعد میری زندگی یہ خوبصورت موڑ لے گی۔ یہ رشتہ مکمل طور پر خاندان والوں کی پسند سے طے ہوا تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنے مستقبل کو خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ اسٹیج پر بڑھتے وقت بھی میری نظریں جھکی ہوئی تھی اور دل بے اختیار دھڑک رہا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد یہی محفل میرے لیے عدالت بن جائے گی۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی نکاح کی کارروائی شروع کرنے کے لیے رجسٹر کھولا، سامنے بیٹھے دولہے کے والد نے بلند آواز میں انہیں روک دیا۔ پورا ہال ساکت ہو گیا۔ انہوں نے نہایت سخت لہجے میں کہا، نکاح سے پہلے ایک سوال کا جواب ضروری ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ اس لڑکی کی حقیقی والد کون ہے؟ نکاح نامے میں کس کا نام لکھا جائے؟ ان کے الفاظ تیر کی طرح ہر دل میں اتر گئے۔ میرے سرپرست سمیت پورا خاندان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ برسوں سے چھپا ہوا راز اب سینکڑوں لوگوں کے درمیان بے رحمی سے کھولا جا رہا تھا۔ میرے سرپرست نے بھرپور کوشش کی کہ وہ آہستہ آواز میں بولے، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے۔ مگر سامنے والے شخص کا لہجہ مزید سخت ہوتا گیا۔ پرورش اپنی جگہ، مگر حقیقت نہیں بدلتی۔ ہمیں دھوکے میں رکھ کر یہ رشتہ طے کیا گیا۔ اگر پہلے سچ بتایا جاتا تو شاید ہم کبھی یہاں نہ آتے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ ذرا سا ہٹایا اور پہلی بار سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جس کے نام سے میری نئی زندگی جڑنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ لمحہ بھر کو یوں لگا جیسے وہ سب کچھ نظر انداز کر کے میرا ساتھ دینا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اپنے دل اور اپنے خاندان کے درمیان پھنس چکا تھا، اور آخر کار خاموشی نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ دلہے کے والد نے سب کے سامنے صاف اعلان کر دیا، ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کی اصل شناخت معلوم نہ ہو، وہ ہمارے خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے وجود کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سب لوگ میری پیدائش پر بحث کر رہے تھے، مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ جس لڑکی کے بارے میں فیصلے سنائے جا رہے ہیں، اس کا دل اس وقت کس درد سے گزر رہا ہے۔ میری سرپرست کی آواز پہلی بار لرز گئی۔ انہوں نے بھرپور وقار کے ساتھ کہا، رشتے خون سے نہیں کردار سے بنتے ہیں۔ اگر تم آج اس بچی کی عزت کو اس کی پیدائش سے تول رہے ہو تو یاد رکھنا ایک دن تمہیں اسی فیصلے پر افسوس ہوگا۔ مگر اس وقت کسی کے دل پر ان باتوں کا اثر نہ ہوا۔
اور خوشیوں سے سجی وہ محفل پل بھر میں ماتم میں بدل گئی، جبکہ مجھے ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ میری اپنی شناخت بن چکا ہے۔ زندگی میں شاید پہلی بار میں نے اپنے سرپرست کو اتنا بے بس دیکھا۔ وہ شخص جس کی ایک آواز پر بڑے بڑے فیصلے بدل جاتے تھے، آج خاموش لہجے میں کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے کندھوں پر پڑی ہوئی شال ہمیشہ ان کے شان اور وقار کی علامت سمجھی جاتی تھی، مگر اس لمحے وہ بھی ان کی بے بسی چھپا نہ سکی۔ ان کے دونوں بیٹے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ جاتی تھی، جیسے انہیں میرا ٹوٹتا ہوا وجود اندر سے زخمی کر رہا ہو۔ میرے والد مانے جانے والے شخص نے غصے سے یہ قدم آگے بڑھایا اور سخت لہجے میں کہا، اگر تمہیں یہ رشتہ قبول ہی نہیں تھا تو ہماری دہلیز پر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہماری بیٹی کی عزت کو تماشا بنانے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ ان کی آواز میں ایسا درد تھا جو صرف ایک باپ محسوس کر سکتا ہے۔ میں جانتی تھی اگر میں ان کی حقیقی اولاد بھی ہوتی تو شاید وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتے۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا، اور آج کوئی ایک لمحے میں اسے رشتے کو جھٹلانے پر تلا ہوا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ امی نے مجھے سینے سے لگا کر خاموش کرانے کی کوشش کی، میرے آنسو پوچھے، مگر اس وقت میرے اندر کچھ نوٹ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی میں نے بامشکل اتنا کہا، بابا۔ میری یہ ایک آواز سنتے ہی پورا ہال خاموش ہو گیا۔ وہ فوراً میرے پاس آئے، مجھے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سن لو سب لوگ، یہ میری بیٹی ہے، صرف میری۔ جس نے آج کے بعد اسے یتیم یا لاوارث کہا، وہ پہلے مجھ سے بات کرے گا۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ان کی دھڑکنیں تیز تھی اور وہ مجھے اس طرح تھامے ہوئے تھے جیسے ڈر ہو کہ کہیں میں ان سے ہمیشہ کے لیے چھن نہ جاؤں۔ مگر سامنے کھڑے لوگوں کے دل نرم نہ ہوئے۔ دلہے کے والد نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور سردی لہجے میں بولے، جسے تم اپنی بیٹی مانتے ہو وہ تمہیں مبارک۔ ہمارا خاندان ایسے رشتے کو قبول نہیں کر سکتا جس کی بنیاد سچ کے بجائے راز پر رکھی گئی ہے۔ ان کے الفاظ نے ماحول میں ایک اور طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ سنتے ہی میرے دادا جیسے بزرگ اپنا ضد کھو بیٹھے۔ وہ غصے میں آگے بڑھے اور سخت احتجاج کرنے لگے۔ چند لمحوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ لوگ بیچ بچاؤ کے لیے دوڑ پڑے تاکہ معاملہ ہاتھا پائی تک نہ پہنچ جائے۔ خوشیوں سے سجی ہوئی محفل اب شور، غصے اور آنسوؤں میں ڈوب چکی تھی۔ دوسری طرف وہ شخص جس سے میرا نکاح ہونے والا تھا خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی۔ شاید وہ میرا ساتھ دینا چاہتا تھا، مگر اپنے خاندان کے فیصلے کے سامنے بے بس تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا ہو، مگر وہ خاموشی کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ چند ہی لمحوں بعد پورا دوسرا خاندان غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ حویلی میں موجود ہر شخص کے چہرے پر ذلت، دکھ اور بے یقینی کے آثار تھے۔ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے دل میں دفن ایک راز اس انداز میں سب کے سامنے آئے گا اور ایک معصوم لڑکی کی خوشیاں چھین لے گا۔ میں ابھی تک اپنے بابا کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ بزرگ خاتون میرے قریب آئے، میرے سر پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں بھر آئی۔ ان کی خاموشی ہی ان کے پچھتاوے کی سب سے بڑی گواہ تھی۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو کیا آپ سب نے مجھ سے سچ چھپایا؟ کیا میں واقعی اس گھر کی نہیں ہوں؟ میرے یہ الفاظ سن کر ہر شخص کا سر جھک گیا۔ امی فوراً میرے پاس آئی، مجھے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو جنم دے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو اپنی پوری زندگی تم پر قربان کر دے۔ تم ہماری عزت ہو، ہماری دعاؤں کا جواب ہو۔ میں نے پھر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ میری آواز میں صرف ایک سوال تھا، بابا کیا آپ واقعی میرے بابا نہیں ہیں؟ وہ ایک لمحہ بھی کچھ نہ بول سکی۔ انہوں نے صرف میرے ماتھے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، پیشانی پر بوسہ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خون کے رشتے انسان کو جنم دیتے ہیں، لیکن محبت کے رشتے زندگی دیتے ہیں۔ اگر باپ ہونے کا مطلب صرف خون کا تعلق ہے تو شاید میں تمہارا باپ نہیں، لیکن اگر باپ وہ ہے جو ہر دکھ سے پہلے اپنی اولاد کے سامنے کھڑا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تمہارا باپ ہونے سے انکار نہیں کر سکتی۔
ان کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ بہنے لگے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف درد نہیں تھا، ان میں اس محبت کا یقین بھی شامل تھا جو کسی بھی رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ میں نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ مجھے اپنا بابا نہیں مانتے؟ میری بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے بے اختیار میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، میری ہتھیلیوں پر محبت سے بوسہ دیتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تم میری بیٹی ہو، صرف میری، دنیا کچھ بھی کہے میرے لیے تم ہمیشہ وہی رہو گی جسے میں نے اپنی دعاؤں سے مانگا تھا۔ میں ان کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکی، بابا میں ہمیشہ آپ ہی کی بیٹی رہوں گی۔ حویلی میں موجود ہر شخص یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا، کسی کی آنکھ خوش نہ تھی، لیکن ابھی کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آزمائش ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور فیصلہ سب کی قسمت بدلنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے بزرگ نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، مہمانوں کو عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، مگر نکاح آج ہی ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ ان کے الفاظ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور اب دوبارہ نکاح کی بات ہو رہی تھی۔ محفل میں بیٹھے سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر حکم دیا گیا، زین کو فوراً بلاؤ۔ یہ نام سنتے ہی کئی چہروں کے رنگ بدل گئے۔ وہ شخص گھر کی باقی افراد سے بالکل مختلف مزاج رکھتا تھا، زیادہ تر اپنے کام یا اپنی تنہائی میں رہنے والا، خاندان کی تقریبات سے دور بھاگنے والا۔ شاید اسی لیے وہ ابھی تک اس ہنگامے سے بے خبر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اسے جلدی سے نیچے بلایا گیا۔ گھر کی خواتین ایک دوسرے کو پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ کبھی کبھار خاندان کے چند لوگوں کے ذہن میں میرا رشتہ زین کے ساتھ جوڑنے کا خیال آیا بھی تھا، مگر اس کی سخت طبیعت، خاموش مزاجی اور غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے یہ بات وہی ختم کر دی گئی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ میرے لیے کوئی نرم دل اور خوش مزاج شریک حیات بہتر ہوگا، اس لیے باہر رشتہ تلاش کیا گیا تھا، مگر آج حالات نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ گھر کے بڑے بیٹے نے ہمت کر کے کہا، بابا جان کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ مگر بزرگ کی یہ خاموش نظر ہی کافی تھی۔ پھر انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کسی کو اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے سامنے اختلاف کرتا۔ میرے بابا نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکا دیا۔ انہیں میری خوشی عزیز تھی، مگر اس وقت وہ جانتے تھے کہ میری عزت بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا، اگر آج تم اپنے بابا پر بھروسہ کر لو تو شاید ہم سب کی عزت محفوظ رہ جائے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، دل چیخ چیخ کر انکار کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی بے بس آنکھوں نے میری زبان بند کر دی۔ میں نے صرف خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اس بار سامنے بیٹھا شخص پہلے والے دلہے جیسا نہ تھا۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں آیا تھا، جیسے جلدی میں بستر سے اٹھ کر سیدھا یہاں پہنچ گیا ہو۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں، سنجیدہ چہرہ اور خاموش طبیعت اسے دوسروں سے بالکل مختلف بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ بھی اس اچانک فیصلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ نکاح کی کارروائی شروع کی۔ میری سماعت جیسے بند ہو چکی تھی، صرف دھندلی دھندلی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے قبول ہے کہا۔ 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا گیا اور ہر بار اس نے بغیر کسی جذبات کے مختصر جواب دیا۔ پھر سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ میں جانتی تھی آج میں اپنی خواہش کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی عزت کے لیے بیٹھی تھی۔ آنسو مسلسل رخساروں پر بہہ رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور کپکپاتے ہوئے لبوں سے 3 مرتبہ قبول ہے کہہ دیا۔ جب نکاح نامہ میرے سامنے رکھا گیا تو میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، قلم پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میرے بابا نے خاموشی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے سہارا دیا، تب جا کر میں اپنے نام کے چند لرزتے ہوئے حروف لکھ سکی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی، نہ خوشیوں کا شور تھا، نہ مبارکباد کی آوازیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری حویلی ایک ہی دن میں برسوں بوڑھی ہو گئی ہو۔ کچھ دیر بعد امی میرے پاس آئی۔ انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، آؤ بیٹا، اب تمہیں اپنے نئے کمرے میں جانا ہے۔ میں نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا، دل میں ہزار سوال تھے۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟
मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई, मगर मेरे लब खामोश थे। शायद आंसू ही अब मेरी जबान बन चुके थे। वो मुझे सहारा देकर ऊपर ले गई और एक कुशादा मगर खामोश कमरे में बिठा दिया। दरवाजा बंद होते ही पहली बार मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि चंद घंटों में मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और अब मेरे सामने एक ऐसा मुस्तकबिल खड़ा था जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं इस वसीअ कमरे के नरम बिस्तर के किनारे बैठी बेख्तियार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। दिल की धड़कन हर लम्हा तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर का हर हौसला मुझसे रूठ गया हो। मैंने नम आंखों से अम्मी की तरफ देखा और बामुश्किल इतना कह सकी, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी उम्र के इस मोड़ पर थी जहां ख्वाब देखने का वक्त था, मगर चंद घंटों में किस्मत ने मुझे एक ऐसे रिश्ते के सामने ला खड़ा किया था जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। अम्मी ने मेरे दोनों हाथ मोहब्बत से अपने हाथों में ले लिए और निहायत नरमी से बोली, बेटा घबराओ मत, ज़ुहैब दिल का बुरा नहीं है। वो सख्त जरूर लगता है मगर मैं जानती हूँ वो किसी पर जुल्म नहीं करता। इनकी बातों में तसल्ली जरूर थी मगर मेरे अंदर बर्पा तूफान इन लफ्जों से थमने वाला नहीं था। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, अगर मुझे पहले सच बता दिया जाता तो शायद मैं खुद को इस सब के लिए तैयार कर लेती। मेरे शिकवे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक ही दिन में मुझसे मेरी शनाख्त भी छीन ली गई और मेरी जिंदगी का फैसला भी कर दिया गया। मैं इतनी मजबूत नहीं थी कि यह सब खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। अम्मी ने मेरे माथे को चूमा और आहिस्ता आवाज में समझाया, अब वो तुम्हारा शौहर है, रिश्तों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, लेकिन तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। दिल चाह रहा था चीख कर कह दूं कि मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं तो खुद अपने साये से भी डरने लगी हूँ, मगर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। अम्मी कुछ देर मेरे पास बैठी, फिर भारी कदमों से कमरे से बाहर चली गई। इनके जाने के बाद पूरा कमरा पहले से भी ज्यादा सुनसान महसूस होने लगा। शाम ढलते ढलते रात ने पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया। मेरे लिए रखा गया खाना वैसा ही ठंडा पड़ा था, मगर भूख जैसे कहीं खो गई थी। मैं घुटनों में सर दिए मुसलसल रोती रही। दिल बार बार एक ही सवाल करता था, अगर मैं वाकई इस घर में की सगी बेटी नहीं थी तो फिर इतने बरस मुझे इस मोहब्बत का हक क्यों दिया गया, और अगर वो मोहब्बत सच्ची थी तो आज अचानक सब कुछ बदल कैसे गया। सबसे ज्यादा तकलीफ इस ख्याल ने दी कि अब लोग मुझे मेरी परवरिश से नहीं, मेरी पैदाइश से पहचाने गए। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इस बाइज्जत खानदान की बेटी हूँ, बल्कि मेरी पहचान एक ऐसे माजी से जोड़ी जाएगी जिससे मैं खुद भी आज तक नावाकिफ थी। यह एहसास मेरे दिल पर पत्थर बनकर बैठ गया था। और फिर दूसरा झटका, वो शख्स जिसे मैं हमेशा अपने बड़े भाई की तरह इज्जत देती आई थी, अचानक मेरा शौहर बन चुका था। वो हमेशा मुझे प्यार से नन्ही कहकर छेड़ता, मेरी जिद्दें बर्दाश्त करता, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझता था। आज अचानक वही रिश्ता बदल गया था और यही तब्दीली मेरे लिए सबसे ज्यादा नाकाबिले यकीन थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। रोते रोते मेरा सर बुरी तरह दर्द करने लगा। ना वो कमरे में आया और ना किसी ने आकर मुझसे कोई बात की। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि वो इस अचानक होने वाले निकाह के बारे में क्या सोच रहा होगा। शायद इसके लिए भी ये सब इतना ही गैर मुतवक्का था जितना मेरे लिए। न जाने रात का कौन सा पहर था जब कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैं नीम गंदगी में थी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर शदीद थकन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे एक ही दिन में बरसों का बोझ इसके कंधों पर आ गिरा हो। चंद लम्हे वो दरवाजे के करीब ही खड़ा मुझे देखता रहा। मैं भारी लिबास और जेवरात समेत बेआरामी की हालत में सो गई थी। आंसुओं की खुश्क लकीरें अब भी मेरे रुखसानों पर नुमायां थी। इसने गहरी सांस ली और चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में पहली बार सख्ती की बजाय एक अजीब से खामोशी अजियत दिखाई दे रही थी। वो मेरे करीब आकर रुक गया। कुछ लम्हे तक खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर दिल ही दिल में जैसे खुद से कहने लगा, इस सब में अगर किसी का सबसे कम कसूर है तो वो यही मासूम लड़की है जिसे हालात ने एक ही दिन में इसकी पहचान, इसके ख्वाब और इसका सुकून सब कुछ छीन लिया। इसकी नजरें मेरे आंसुओं पर ठहर गई और पहली बार इसे महसूस हुआ कि किस्मत ने सिर्फ मेरी नहीं, इसकी जिंदगी का रास्ता भी अचानक बदल दिया था। इस सारे हंगामे में अगर किसी का कोई कसूर नहीं था
तो वो मैं थी, और शायद वो भी मेरी हकीकत इससे छुपी हुई नहीं थी। मगर जिस अंदाज में सब कुछ एक ही दिन में बदल गया, इसके लिए ना मैं तैयार थी और ना वो। हालात ने हम दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया था जिसका फैसला हम में से किसी ने नहीं किया था। वो खामोशी से कमरे के दूसरे किनारे आकर बैठ गया। कुछ लम्हों तक बस मुझे देखता रहा। इसकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई हाथों तक पहुंची, जहां नई नवेली दुल्हन की चूड़ियां मध्यम रोशनी में चमक रही थी। शायद हर किसी के लिए वो खुशी की अलामत थी, मगर इस लम्हे मुझे खुद भी वो चूड़ियां ऐसे महसूस हो रही थी जैसे किस्मत ने मेरे हाथों में खामोश बेड़ियां डाल दी हो। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, जैसे कुछ सोच रहा हो, और इसकी उंगली बेख्तियार मेरी कलाई के करीब जा रुकी। मैं घबराकर फौरन जाग उठी। चंद लम्हे तो मुझे समझ ही ना आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर नजर सामने बैठी इस शख्सियत पर पड़ी तो सांस जैसे रुक सी गई। अब वो मेरा शौहर था, मगर मेरा दिल अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा शायद वो नाराज होगा या मेरे साथ अजनबियों जैसा बर्ताव करेगा, मगर हैरत इस वक्त हुई जब इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो मुस्कुराहट ना तनस से भरी हुई थी ना गुरूर से, बस एक थकी हुई बेबस सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे तसल्ली देना चाहता हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। मैंने फौरन नजरें झुका ली ताकि वो मेरी भीगी हुई पलकें न देख सके, मगर अगले ही लम्हे इसने नरमी से मेरी कलाई थामे। मैं संभल भी ना सकी और बेख्तियार इसकी तरफ लड़खड़ा गई। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो भी इसे साफ सुन सकता है। मैं फौरन खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, मगर इसने कोई सख्ती नहीं की, सिर्फ खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। फिर धीमे लहजे में बोला, इतना क्यों रो रही हो? इसकी आवाज में डांट नहीं थी, बल्कि वही शफकत थी जो किसी डरी हुई बच्ची को चुप कराने के लिए होती है। मगर मैं कैसे बताती कि मैं सिर्फ रो नहीं रही थी, मैं तो एक ही दिन में अपनी पहचान, अपने ख्वाब और अपनी पूरी दुनिया खो बैठी थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसने एक अजीब सा सवाल किया, अगर तुम्हें इख्तियार दिया जाता तो क्या तुम ये निकाह कबूल करती? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। सवाल गैर मुतवक्का था। आंसू दोबारा आंखों में भर आए। मैंने कुछ सोचे बगैर आहिस्ता से नफी में सर हिला दिया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे मेरा जवाब ने इसे अंदर तक छू लिया हो। फिर इसने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो फिर क्या तुम मुझे अपना शौहर भी नहीं मानते? इसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा धीमी थी। वो इतना करीब आ गया कि मैं इसकी सांसों की हद तक महसूस कर सकती थी। घबराहट से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन जल्दी जल्दी सर हिलाकर नफी की, जैसे कहना चाहती हूँ कि बात ऐसी नहीं, बस मेरा दिल अभी इस अचानक बदलती हकीकत को समझ ही नहीं पा रहा। मेरी इस घबराई हुई कैफियत को देखकर वो बेख्तियार हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस बार इसकी मुस्कुराहट में मजाक नहीं था, बल्कि शायद पहली बार इसे एहसास हुआ कि इसके सामने बैठी लड़की इसकी बीवी कम, हालात की मारी हुई एक मासूम रूह ज्यादा है, जिसे वक्त ने एक ही दिन में बरसों बड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। मैंने घबराहट में फौरन नफी में सर हिला दिया तो वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो धीरे से बोला, यह भी अजीब बात है, निकाह हो चुका है मगर तुम अब भी मुझे अपने शौहर के तौर पर कबूल करने से घबरा रही हो। इसके लहजे में तनज नहीं था, बल्कि एक बेबस सी मुस्कुराहट छुपी हुई थी। मैं नजरें झुकाए अपने होंठ दांतों में दबाए बैठी थी। शायद वो मेरी घबराहट समझ गया था, इसलिए इसने नरमी से मेरा हाथ थामा और कहा, खुद को इस तरह तकलीफ मत दो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर इसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ अपने दिल से उतारने जा रहा हो। तुम्हें एक सच जानने का हक है, इसने संजीदा लहजे में कहा। मेरी जिंदगी में तुमसे पहले भी एक लड़की थी। मैं इससे वादा कर चुका था कि एक दिन इसे अपनी शरीके हयात बनाऊंगा। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जरूर धड़का, मगर आंखों से आंसू ना निकले। शायद आज एक ही दिन में इतने सदमे सह चुकी थी कि अब मजीद दर्द महसूस करने की भी ताकत बाकी नहीं रही थी। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से पूछा, तो क्या मैं किसी और की जगह पर आ गई हूँ? इसने मेरी तरफ देखा, फिर खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हे में खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, किसी का हक लेकर मिलने वाली जगह कभी अपनी नहीं लगती। मैं किसी की जगह लेने नहीं आई। मेरे जवाब ने इसे हैरान कर दिया। शायद इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सुकून से इसकी बात सुन लूंगी। इसकी नजरें मेरी कलाइयों पर आकर रुक गई।
जहां रंग बिरंगी चूड़ियां झलमल कर रही थी। इसने इजाजत तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और जब मैं खामोश रही तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक चूड़ी उतारने लगा। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्यों? वो धीरे से बोला, ये रस्मों की आवाज है और आज तुम्हें शोर नहीं, सुकून चाहिए। इसकी बातों में ना जल्दबाजी थी और न बेतकल्लुफी, बल्कि एक अजीब से एहतियात थी, जैसे वो मेरी किसी भी हद को पार नहीं करना चाहता था। चूड़ियां उतारते हुए वो आहिस्ता से बोला, मैं नहीं जानता किस्मत ने हमारे साथ ये खेल क्यों खेला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। मेरे दिल में ना इसके लिए नफरत थी और न शिकवा, क्योंकि मैं जानती थी कि यह फैसला हम दोनों की मर्जी के बगैर हुआ था। जब इसने मेरी दूसरी कलाई भी चूड़ियों से आजाद की तो एक लम्हे के लिए इसका हाथ मेरे माथे की तरफ बढ़ा, मगर फौरन रुक गया। इसने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे इजाजत मांग रहा हो। मैं घबराकर नजरें झुका गई तो इसने फौरन अपना हाथ वापस खींच लिया। वो आहिस्ता से उठा और खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मुझे नहीं मालूम ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, ना ये जानता हूँ कि हम कभी एक दूसरे को दिल से कबूल कर पाएंगे या नहीं। वो जानने के लिए मुड़ा ही था कि ना जाने क्यों मेरे हाथ ने बेख्तियार इसकी कलाई थाम ली। वो रुक गया और खामोशी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने धीमी आवाज में पूछा, अगर अब ये निकाह हो चुका है तो क्या तुम उसे सिर्फ एक मजबूरी समझोगे या कभी दिल से निभाने की कोशिश भी करोगे? इसने चंद लम्हे मेरी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं वादे बहुत सोच कर करता हूँ, मगर एक बात जानता हूँ, जिस रिश्ते को कबूल कर लो इसकी बेइज्जती कभी नहीं करता। आज दिल उलझा हुआ है, मगर वक्त शायद हमें वो जवाब दे दे जो आज हमारे पास नहीं। यह कहकर वो बालकनी की तरफ चला गया। मैं खामोशी से अपनी भारी जेवरात उतारकर बिस्तर के एक कोने में लेट गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। वो काफी देर तक बालकनी में खड़ा रात के अंधेरे को देखता रहा, जबकि मैं बंद आंखों के साथ अपनी बदलती हुई किस्मत को समझने की कोशिश करती रही। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी तकदीर हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। आसमान सीधा उस कैफे में पहुंचा जहां मायरा पहले ही इसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा, मायरा ने गुस्से से इसे देखा और बुलंद आवाज में बोली, तो मतलब यह है कि तुम सिर्फ निकाह ही नहीं करके आए, बल्कि पूरी रात अपनी नई बीवी के साथ भी गुजार आए हो। इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि करीब बैठी कई नजरें बेख्तियार इन दोनों की तरफ उठ गई। आसफिन ने फौरन धीमे लहजे में कहा, मायरा आहिस्ता बात करो, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मगर वो इस वक्त अपने गुस्से पर काबू पाने के काबिल नहीं थी। 5 साल से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। इनके दरमियान एतमाद और साथ का एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। अगरचे असफन ने कभी बड़े बड़े मोहब्बत भरे दावे नहीं किए थे, लेकिन इसने हमेशा मायरा को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा माना था। यही वजह थी कि आज की हकीकत मायरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने रोते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं सुकून से बैठकर ये सब सुनूं? तुम किसी और से निकाह करके आए हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं खामोश रहूं। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसे इस हाल में देखकर असफन भी बेचैन हो गया। इसने नरमी से इसके हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से बोला, मेरी बात सुनो, अगर मैं उस वक्त ये फैसला ना करता तो एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसके खानदान की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाती और मैं वो मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। असफन दुनिया के सामने हमेशा मजबूत दिखाई देता था, मगर वो मायरा के सामने वो कभी अपनी जज्बात नहीं छुपाता था। इसने हर बात सच सच बता दी, क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पर किसी भी रिश्ते को कायम रखना नहीं चाहता था। मायरा ने आंसू साफ करते हुए भराई हुई आवाज में कहा, अब जब सब कुछ हो चुका है तो इसे तलाक दे दो, फिर हम अपनी जिंदगी शुरू कर लेंगे। असफन ने गहरी सांस ली और कुर्सी की पिच से टेक लगाकर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं यहाँ तुमसे झूठ बोलने नहीं आया। मैंने उस लड़की से भी कोई हकीकत नहीं छुपाई और तुमसे भी कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन अभी मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। वो पहले ही एक दिन में अपनी शनाख्त, अपने ख्वाब और अपनी खुशियां खो चुकी है। मैं इस पर एक और जुल्म नहीं कर सकता। वापसी के पूरे रास्ते मायरा खामोशी से रोती रही, जबकि असफन बेबसी से इसे देखता रहा। वो जानता था कि आज इसने इसका दिल बुरी तरह तोड़ा है, मगर वो ये भी जानता था कि हालात ने इसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था
जहां हर रास्ता किसी न किसी के लिए दर्द का सबब बनने वाला था। इस रात वो मामूल से कहीं ज्यादा देर से घर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा हरीश खामोशी से इसका इंतजार कर रही थी। न दुल्हनों जैसा भारी श्रृंगार था, न शौक लिबास। इसने सादा सा जोड़ा पहन रखा था और चेहरे पर थकन और उदासी के बावजूद एक मासूम सी संजीदगी थी। असपन चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ा इसे देखता रहा। हरीश आहिस्ता से अपनी जगह से उठी और नरम लहजे में बोली, आपके लिए खाना गर्म कर दूं? ये पहला मौका था जब इसने इसे इस नए रिश्ते के एहतराम के साथ मुखातिब किया था। असपन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर अपनी घड़ी उतारते हुए मेज पर रखी और हल्की से मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है तुम बहुत जल्द इस घर की जिम्मेदारियां सीखने लगी हो। हरीश ने जवाब में सिर्फ हल्की से मुस्कुराहट दी, मगर इसके दिल में अब भी सैकड़ों सवाल दबे हुए थे। वो जानती थी कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक निकाह नहीं, बल्कि बहुत सी उलझने, अधूरे वादे और आजमाइशें भी खड़ी थी, जिनका सामना इन्हें आने वाले दिनों में करना था। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने घबराहट में अपने चेहरे पर गिरी हुई लटका कान के पीछे किया और धीरे से बोली, अम्मी ने मुझे और भी बहुत सी बातें समझाई हैं। मेरी आवाज में मासूमियत थी, जैसे मैं किसी आम बात का जिक्र कर रही हूँ, मगर वो इस वक्त शायद किसी और ही कैफियत में था। इसके चेहरे पर थकन और उलझन साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से या परेशानी को मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहता था। इसने यह कदम आगे बढ़ाया और आहिस्तगी से मेरी कलाई थामकर मुझे अपने करीब कर लिया। इसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में थी। हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो बताओ, वो कौन सी नसीहतें हैं जो तुम्हें दी गई हैं? क्या अब तुम इन्हीं आजमुदा नुस्खों से अपने शौहर को काबू करने की कोशिश करोगी? इसके लहजे में हल्का सा मजाक जरूर था, मगर मैं एक लम्हे में शर्म से सिर्फ हो गई। मैंने फौरन नजरें झुका ली और खामोशी खड़ी रही। इसने मेरी खामोशी को देखकर फिर आहिस्ता से कहा, ये सब भूल जाओ। अगर किसी ने तुम्हें बताया है कि शौहर को चालाकी या नाराजी या मसनवी अंदाज से अपने ख्वाबों में रखा जाता है, तो यकीन करो वो तरीका मुझ पर कभी असर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ सच्चाई और खुलूस को समझता हूँ। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल और ज्यादा घबरा गया। मुझे महसूस होने लगा जैसे शायद वो मेरे बारे में गलत राय कायम कर चुका है, जैसे इसे लगता हो कि मैं इसके करीब आने के लिए कोई दिखावा करूंगी। हालांकि हकीकत तो ये थी कि मैं तो अभी तक इसके सामने नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। हमारी पहली रात ही एक अजीब से खामोशी और बेयकीनी में गुजर रही थी। मैंने आहिस्ता से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त अगर मैं मजीद वहां ठहरती तो शायद अपने जज्बात पर काबू न रख पाती। दूसरी तरफ वो भी खामोश होकर बिस्तर पर बैठ गया। इसे महसूस होने लगा था कि शायद इसकी बातों ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। वो खुद भी जानता था कि हालात ने हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी हैं, और अगर इन्हें अभी ना रोका गया तो ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा। वो काफी देर तक बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा। एक के बाद ये ख्याल इसके जहन में आता रहा। कभी इसे अपने फैसले याद आते, कभी वो लड़की जिससे इसने वादे किए थे, और कभी मेरी खामोशी आंखें इसके सामने आ जाती। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में ना जाने कब इसकी आंख लग गई। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज से इसकी आंख खुली। मुलाजिमा नाश्ते की इतला देने आई थी। वो चौंक कर उठ बैठा। तभी से एहसास हुआ कि वो पूरी रात इसी हालत में सोया रहा था। जूते अब भी इसके पाँव में थे और लिबास भी तब्दील नहीं किया गया था। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर इसकी नजर कमरे पर दौड़ी। सब कुछ निहायत तरतीब से रखा हुआ था। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि रात इसके सोने के बाद में जरूर कमरे में आई होंगी। शायद मैंने खामोशी से इसकी बेतरतीबी समेटी, सामान अपनी जगह रखा और बगैर इसे जगाए वापस चली गई। ये सोचकर इसके दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी पैदा हुई। पहली बार इसे एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ एक रस्मी निकाह नहीं रहा, बल्कि अब इसके साथ एक ऐसी जिम्मेदारी भी जुड़ चुकी है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इधर मैं भी सुबह सवेरे उठ चुकी थी। अम्मी ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता घर की मामला समझाने शुरू कर दिए थे। वो बार बार यही कहती थी, बहू होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे घर का सुकून संभालने का नाम है। मैं खामोशी से इनकी हर बात सुनती रही, क्योंकि अब मेरी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां वापस पलटने का कोई अमकान बाकी नहीं था। सुबह की हल्की हल्की धूप हवेली के सहन में बिखर चुकी थी।
मगर मेरे दिल पर अभी तक रात की तारीकी छाई हुई थी। मैं खामोशी से बावर्ची खाने में काम सीख रही थी। बड़ी अम्मी बार बार मुझे तसल्ली देती, बेटा खुद को काम में लगा लो, वक्त हर जख्म पर मरहम रख देता है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, मगर दिल जानता था कि कुछ जख्म वक्त से नहीं, सच्चाई से भरते हैं। नाश्ते की मेज पर पहली बार पूरा खानदान इकट्ठा बैठा था। सबकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठती थी, मगर कोई भी मुझसे नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने खामोशी से सबके सामने नाश्ता रखा और एक तरफ खड़ी हो गई। इसी लम्हे जुहैब सीढ़ियां उतरता हुआ आया। इसने एक नजर मेज पर बैठे सब लोगों को देखा, फिर खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों तक पूरे हॉल में सिर्फ बर्तनों की आवाजें सुनाई देती रही। अचानक एक मुलाजिमा ने आकर इतला दी, साहब, बाहर कोई खातून आपसे मिलने आई है। वो कह रही है कि अभी और इसी वक्त मुलाकात जरूरी है। जुहैब के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप एक लम्हे के लिए रुक गया। इसके चेहरे का रंग बदल गया, जबकि मेरे दिल में एक अनजाना खौफ उतरने लगा। ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि यह आने वाली औरत हमारी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आई है। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, कौन है? मुलाजिमा ने झिझकते हुए जवाब दिया, वो अपना नाम मायरा बता रही है। ये नाम सुनते ही जुहैब की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दी, जबकि मैं खामोशी से इसके चेहरे को देखती रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। इन्हें अंदर भेज दो, जुहैब ने निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, मगर इसकी आवाज की हल्की सी कपकपाहट मुझसे छुपी न रह सकी। चंद लम्हों बाद एक खूबसूरत मगर बिखरी हुई सी लड़की ड्राइनिंग रूम में दाखिल हुई। इसकी आंखें पूरी रात रोने की गवाही दे रही थी। जैसे ही इसकी नजर जुहैब पर पड़ी, वो चंद कदम आगे बढ़ी, मगर फिर अचानक रुक गई। इसकी नजरें पहली बार मुझ पर ठहरी और इसके चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट उभर आई। मुबारक हो, इसने आहिस्ता से कहा। आखिरकार तुमने वो रिश्ता पा ही लिया जिसके लिए मेरी 5 साल की मोहब्बत हार गई। इसकी बात सुनते ही पूरा कमरा खामोश हो गया। खानदान की बशीतर अफराद पहली बार इस लड़की को देख रहे थे, मगर जुहैब का झुका हुआ सर सब कुछ बयान कर रहा था। मैंने खामोशी से इसकी तरफ देखा, मगर मेरे दिल में ना गुस्सा था न नफरत, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। सायरा ने अपने आंसू साफ किए और बुजुर्गों की तरफ देखकर बोली, मुझे इस घर से कोई शिकायत नहीं, मगर मुझे सच जानने का हक था। अगर किस्मत ने मुझे हरा दिया है तो कम से कम मेरी मोहब्बत को झूठा ना समझा जाए। कमरे में बैठे सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जुहैब ने गहरी सांस ली, फिर पहली बार मजबूत लहजे में कहा, काफी है मायरा, यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं होगी, न तुम्हारी न मेरी बीवी की। बीवी? मायरा तलख लहजे में हंस पड़ी। कितनी आसानी से तुमने यह लफ्ज कह दिया, इससे पहले कि माहौल मजीद खराब होता। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठी। सबको लगा शायद मैं रो दूंगी या वहां से चली जाऊंगी, मगर मैं सीधी मायरा के सामने जाकर रुक गई। मैंने धीरे से कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने आपसे कुछ छीना है तो यकीन करें, मेरी अपनी जिंदगी भी मुझसे छीन चुकी है। मैं भी इस रिश्ते में अपनी मर्जी से नहीं आई। मेरी बात सुनकर मायरा पहली बार खामोशी हुई। इसने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे इसे मेरे जवाब की तौका ना हो। मैंने नम आंखों के साथ कहा, हम दोनों हारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपनी मोहब्बत खोई है और मैंने अपनी पहचान। पूरा कमरा खामोश हो गया, हत्ता कि जुहैब भी हैरत से मुझे देख रहा था। शायद इसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ खामोश रहने वाली लड़की नहीं, बल्कि अपने दर्द को लफ्जों में ढालना भी जानती हूँ। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इस लम्हे हवेली के मरकजी दरवाजे पर एक खाली गाड़ी आकर रुकी थी और इसमें बैठा शख्स वो राज लेकर आया था जो ना सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि इस पूरे खानदान की खिदमत हमेशा के लिए बदलने वाला था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि हर शख्स की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अजनबी शख्स ने मेज पर रखी पुरानी तस्वीर उठाई और आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ाती। मैंने कांपते हुए हाथों से तस्वीर थामी। इसमें एक नौजवान जोड़ा मुस्कुरा रहा था और इनकी गोद में चंद माह की एक नन्ही सी बच्ची थी, जिसके गले में वही चांदी का तावीज झूल रहा था जो अभी मेज पर रखा था। मेरी नजरें बार बार तस्वीर और तावीज के दरमियान घूम रही थी, मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरा नाम फरीद मिर्जा है, इस शख्स ने धीमी आवाज में कहा, और आज से 25 साल पहले मैं तुम्हारे वालिद का सबसे करीबी दोस्त था। इसके अल्फाज सुनकर पूरे कमरे में खलबली मच गई। बाबा बेयकीनी से इसे देख रहे थे।
जबकि दादा की पेशानी पर पसीना नमूदार हो चुका था। फरीद मिर्जा ने बात जारी रखी। इस जमाने में तुम्हारे वालिद एक बड़े कारोबारी तनाजे में फंस गए थे। इन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही थी। एक रात इनकी गाड़ी पर हमला हुआ। सबको यही बताया गया कि वो इनकी अहलिया और इनकी नन्ही बेटी हादसे में जान बहक हो गए, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बेख्तियार पूछा, अगर वो सब जिंदा थे तो फिर मैं इस हवेली तक कैसे पहुंची? फरीद मिर्जा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे बरसों पुराना दर्द दोबारा जाग उठा हो। हमले के बाद तुम अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी। हालात इतने खराब थे कि हमें सिर्फ तुम मिले थी। हमने बहुत तलाश किया, मगर ना तुम्हारे वालिद मिले न वालिदा। कुछ लोगों ने तुम्हें यतीम खाने पहुंचा दिया और फिर चंद महीनों बाद तुम इस घर में आ गई। ये सुनते ही मेरे बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरी तरफ बढ़े और भराई हुई आवाज में बोले, बेटा, हमें सिर्फ इतना मालूम था कि तुम एक बेसहारा बच्ची हो। अगर हमें तुम्हारे असल खानदान का पता होता तो हम कभी तुम्हारे इनसे जुदा ना रखते। मैं खामोशी से इन्हें देखती रही। पहली बार मेरे दिल में इनके लिए कोई शिकवा बाकी न रहा। मैं जान गई थी कि उन्होंने मुझसे मोहब्बत में कभी कमी नहीं की, सिर्फ हकीकत इनसे भी ओझल रही थी। मगर इसी लम्हे फरीद मिर्जा ने एक और जुमला कहा जिसने सबको दोबारा चौंका दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबकी नजरें फौरन इसकी तरफ उठ गई। वो संजीदा लहजे में बोला, 2 माह पहले मुझे एक शख्स से मिला और इसने दावा किया कि आयशा के वालिद अब भी जिंदा है। ये सुनते ही मेरे हाथ से तस्वीर फर्श पर गिर गई। क्या? मेरी आवाज बामुश्किल निकली। फरीद मिर्जा ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, और अगर मेरी मालूमात दुरुस्त है तो वो शख्स इसी शहर में मौजूद है। मगर मसला यह है कि इसे यह तक मालूम नहीं कि इसकी बेटी आज भी जिंदा है। ये सुनते ही पूरा कमरा सकते में आ गया, जबकि जुहैब ने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत ने सिर्फ एक निकाह नहीं कराया था, बल्कि इसे यह ऐसी कहानी का हिस्सा बना दिया था जिसके राज अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलने वाले थे। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। कमरे की हर आवाज जैसे धुंधली पड़ गई। मेरे कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, तुम्हारे वालिद जिंदा है। मैं बेख्तियार चंद कदम पीछे हट गई, मगर मेरे कदम लड़खड़ा गए। जुहैब ने फौरन आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया, मगर मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था, अगर वो जिंदा है तो फिर उन्होंने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? फरीद मिर्जा ने अफसरदगी से मेरी तरफ देखा। बेटी, कहानी इतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हादसे के बाद तुम्हारे वालिद शदीद जख्मी हालत में कई माह तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे। जब इन्हें होश आया तो इनकी याददाश्त तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। बीवी और बेटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बरस इलाज चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपनी जिंदगी के टुकड़े याद आने लगे, मगर तुम्हारी कोई खबर न मिल सकी। यह सुनकर मेरे दिल में बरसों का जमा हुआ गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता दर्द में बदलने लगा। मैंने अकबर बाबा की तरफ देखा, जो नम आंखों के साथ मुझे ही देख रहे थे। अगले ही लम्हे में दौड़कर इनके गले लग गई। आप ही मेरे बाबा हैं, ये सोच कभी नहीं बदलेगी। मेरी आवाज रंग गई थी। अकबर बाबा ने मुझे मजबूती से सीने से लगा लिया और इनकी आंखों से बहते आंसू मेरे माथे पर गिरने लगे। पूरे कमरे में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो चुकी थी। चंद लम्हे बाद फरीद मिर्जा ने वकील को इशारा किया। वकील ने एक बंद लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे वालिद ने कुछ दिन पहले हमारे पास छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इनकी बेटी मिल जाए तो यह खत सिर्फ इसी के हाथ में दिया जाए। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर एक पुराना सा खत था, जिसके कागज पर वक्त के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने खत खोला ही था कि जुहैब ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो बाद में पढ़ लेना। मगर ना जाने क्यों मेरे दिल ने इसी लम्हे इसे पढ़ने की जिद की। मैंने लरसती हुई आवाज में पहला जुमला पढ़ा, मेरी प्यारी बेटी, अगर यह खत तुम तक पहुंच गया है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने मेरी बरसों की दुआ कबूल कर ली। सिर्फ इतना पढ़ते ही मेरी हिचकियां बन गई। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे और खत मेरे हाथों में लरसने लगा। मगर किसी ने यह नहीं देखा कि कमरे के ये कोने में खड़ा एक शख्स मुसलसल फरीद मिर्जा को घूर रहा था। इसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जैसे इसे डर हो कि अगर सारी हकीकत सामने आ गई तो बरसों से छुपाया गया ये कौर राज भी बेनकाब हो जाएगा। इसने खामोशी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को सिर्फ एक जुमला भेजा, वो आदमी हवेली तक पहुंच चुका है, अब देर नहीं करनी।
इधर हम सब इस खत में खोए हुए थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि हवेली के बाहर एक नई साजिश जन्म ले चुकी है। और ये साजिश सिर्फ मेरी शनाख्त ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी को खतरे में डालने वाली थी। खत अभी मेरे हाथों में ही था कि अचानक बाहर से गाड़ी की ब्रेक लगने की तेज आवाज सुनाई दी। हवेली के सिक्योरिटी गार्ड तेजी से मरकजी दरवाजे की तरफ दौड़े। चंद लम्हों बाद एक मुलाजिम हाँफता हुआ अंदर आया। खान साहब, बाहर कुछ लोग जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरीद मिर्जा से अभी मिलना है। ये सुनते ही फरीद मिर्जा का चेहरा संजीदा हो गया। इसने फौरन खिड़की के पर्दे की ओट से बाहर झांका और बेख्तियार इसके मुंह से निकला, वो लोग यहाँ तक पहुंच गए। कौन लोग? दादा जान ने सख्ते लहजे में पूछा। फरीद मिर्जा ने गहरी सांस ली। वही लोग जिन्होंने बरसों पहले इस बच्चे की जिंदगी उजाड़ी थी। इन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ, वो मेरे पीछे पीछे पहुंच गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जुहैब एक लम्हा भी जाया किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर मैंने बेख्तियार इसका बाजू थाम लिया। ना जाने क्यों दिल में अजीब सा खौफ उतर आया था। इसने मेरी तरफ देखा और पहली बार इसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं बल्कि यकीन था। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। यही शख्स चंद दिन पहले इस रिश्ते से दूर भाग रहा था, मगर आज पहली बार वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबके सामने खड़ा था। इधर बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद वली खान चंद मुहाफिजों के साथ अंदर आए। बाबा जान, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आयजा को हमारे हवाले ना किया गया तो वो पुलिस और अदालत दोनों का सहारा लेंगे। आयजा, मैंने हैरत से दोहराया। फरीद मिर्जा ने मेरी तरफ देखा। बेटी, आयजा तुम्हारा असल नाम है। बरसों पहले तुम इसी नाम से जानी जाती थी। इस हवेली में आकर तुम्हारा नाम बदल दिया गया था ताकि कोई तुम तक ना पहुंच सके। मेरे कदमों तले जैसे जमीन निकल गई। एक ही दिन में मुझे अपनी जिंदगी के कितने ही नए सच मालूम हो रहे थे। पहले यतीमी का राज, फिर वालिद के जिंदा होने की खबर, और अब मेरा असल नाम भी कुछ और था। इसी लम्हे बाहर से एक बुलंद आवाज गूंजी। अगर आयजा खुद हमारे सामने आ जाए तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे, वरना आज ही दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। कमरे में मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अकबर बाबा ने फौरन मुझे अपने पीछे कर लिया, जबकि जुहैब दरवाजे के सामने मजबूती से खड़ा हो गया। लेकिन इसी लम्हे ऊपर वाली मंजिल से एक घबराई हुई चीख सुनाई दी। आग लग गई है। सब चौंक कर ऊपर की तरफ दौड़े, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आग हादसा नहीं थी बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी ताकि इस अफरा तफरी में यह कैसा काम किया जा सके जिसे हमेशा के लिए यह अहम गवाह खामोश हो जाए। अगली सुबह हवेली की फिजा गैर मामूली हद तक खामोश थी। गुज़िश्ता रात के तमाम वाक़ियात ने हर शख्स को अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं खामोशी से बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी। घर की औरतें अपनी अपनी मसरूफियात में थी, मगर इनकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ जाती थी। किसी की आंखों में तरस था, किसी के दिल में फिक्र, और कोई शायद अब भी मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश की, क्योंकि तन्हाई मिलते ही ज़हन फिर इन्हीं तलख हकीकतों की तरफ भागने लगता था। इसी दौरान जुहैब नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठ गया। इसकी आंखों के नीचे हल्के वाजा थे, जैसे वो भी पूरी रात सो न सका हो। मैं खामोशी से इसके सामने चाय का कप रखकर पलटने लगी तो इसने पहली बार निहायत नरम आवाज में कहा, तुमने खुद नाश्ता किया? मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गई। इतनी सादा सी बात भी मेरे लिए हैरान कुन थी। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी अभी नहीं। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, पहले खुद खा लिया करो। दूसरों का ख्याल रखने वाले अगर अपना ख्याल ना रखें तो जल्द थक जाते हैं।